Hey guys, welcome back to another video. I know I'm not posting videos uh, like frequently, but it's okay because I'm in my home and I'm just enjoying my free time. Whatever, today we're gonna discuss Code Forces around 1115 diff 2, and I'm gonna be discussing three problems today. First three problems. So let us start. The first problem says you are a fighting boss with an unknown amount of health. Okay. You have a sequence of n spell cards where the ith card deals AI damage. Okay, हम लिखते भी जाते हैं. ith card deals AI damage. You can rearrange your hand and play the cards in any order you choose. Okay, I can rearrange. The boss has an adaptive shield. If you ever play two cards in a row that deals exact same amount of damage, the shield permanently actives. The card that triggers the shield still deals its normal damage, but all subsequent cards you play will deal zero damage. Okay. Find the maximum total health the boss can have, such that you will defeat him if you arrange and play your cards optimally. Test case constraints are this, right? N is very small. So question में बोला क्या गया है? This is the damage. ith card deals this much damage, right? AI damage. Now, if let's say I have cards like this, like 1, 2, 3, 4, 5. These are indices, and let's say first card deals 2 damage, then 3, then 4, then again 2, then again 2. I can rearrange, okay? Now, what they said, key. If I let's say take this, then take this, then take this, then I take this. If I again take this, let's say यहाँ पर 6 है and here it's 3. If I take this again, like this 2, then after that if I take 2, then there will be a problem. क्या होगा कि इस 2 के लिए तो ऐड होगा, लेकिन इसके बाद जो भी मैं लूँगा, इसके बाद इस 2 के बाद जो कुछ भी मैं लूँगा 3, 4 या फिर कुछ भी रहे, उन सब के लिए ज़ीरो आएगा. ज़ीरो क्या आएगा? ज़ीरो मतलब मेरा ऐड होगा, मेरा टोटल डैमेज है. ये सब टोटल डैमेज है. फर्स्ट ए वाला कार्ड लिया तो डैमेज पड़ा ये, फिर ये लिया तो डैमेज पड़ा 3, फिर ये लिया तो डैमेज पड़ा +4, प्लस प्लस एड अप करते जा रहा. फिर ये 2 लिया, एड अप हो. लेकिन अगर सेम वैल्यू 2 बार ले लिया, लाइक लेट्स से ऐसा है कुछ, let's say like this, and here it's 4. I take it. Okay, I can I take it? Yes. So 4 to add हो जाएगा, 6 हो गया. Can I take it? Yes, but there is a problem. If I take it, then what will gonna be कि इसके बाद जो भी मैं लूँगा उन सब के लिए ज़ीरो ऐड होगा, मतलब कुछ भी ऐड नहीं होगा. तो ये सब ये अगर मैं ये 2 ले लिया, देन इन सब का रहने का ना रहने का मतलब सेम है. लेकिन मैंने अगर ऐसे रीअरेंज किया, लेट्स से ये ऐसा था, लेट्स से वी रीअरेंज समथिंग लाइक दिस, आई कैन रीअरेंज. ओके, so 4 2, then again 2, then 3, then now see, I can take it, take it, take it, take it, take it, क्योंकि कभी भी 2 2 नहीं आ रहा है. और अगर आ भी रहा है तो फिर लाइक आई कैन ऑल्सो रीअरेंज देम लाइक दिस, 3 then 2. अब तुम लोग बोलोगे, यू गाइस कैन थिंक कि यहाँ पर तो 2 2 2 आ रहा है तो ये तो ऐड नहीं होगा. नहीं, ऐड होगा. ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये ऐड होगा. लेकिन इसके बाद का जो वैल्यूज है वो कुछ भी ऐड नहीं होंगे. लेकिन इसके बाद कुछ वैल्यूज है ही नहीं. वी कैन सी दैट. सो कुछ है ही नहीं, तो वी कैन जस्ट मेक दिस थिंग ऑल्सो, वी कैन जस्ट मेक दिस थिंग ऑल्सो. दोनों में ही दोनों ऐड होंगे. अब हमको बोलना है कि मैक्सिमम बॉस का हेल्थ कितना हो ताकि हम उस बॉस को डिफीट कर पाए. मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमको मैक्सिमम सम निकालना है. ओके, एक टेस्ट केस लेते हैं. लेट अस से दिस टेस्ट केस उतना अच्छे नहीं है. लाइक जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था ये वाला, देन एट दैट टाइम it was not so easy to understand the test cases. Like they are not sufficient. Let's say I take this 10. Can I? Yes. I can take this 5. Can I? Yes. I want to maximize this sum. Okay. Because बोले again I explained कि boss का health maximum कितना लेना चाहिए. हाँ, maximum कितना लेना चाहिए. तो कैन आई टेक दिस 5? यस. कैन आई टेक दिस 10? यस. कैन आई टेक दिस 10? यस. इसके बाद का कुछ भी नहीं ले सकते, लेकिन इसके बाद कुछ है भी नहीं. लेकिन कैन आई टेक दिस? इफ आई रीअरेंज देम लाइक दिस, देन अब सम क्या आ रहा है? 35.
लेकिन अगर मैं इनको ऐसे रीअरेंज कर देता देन कैन आई टेक दिस, यस कैन आई टेक दिस, यस, बट इसके बाद का कोई वैल्यू नहीं, तो ये सब के लिए 0, देन सम 20 आता, लेकिन ये 35 इज बेस्ट, सो आंसर 35। सिमिलरली फॉर दिस 7 7 7 7 7 7, सो अगेन यू गाइस कैन सी, जैसा मैंने बोला कैन आई टेक दिस 7, यस कैन आई टेक दिस 7, यस, बट इसके बाद का कुछ भी उसके बाद वैल्यू नहीं, वैल्यू एड अप नहीं होगा, सो आई कांट टेक इट आफ्टर दिस 7। कैन आई रीअरेंज देम सम वे कि इससे ज़्यादा सम है, लेकिन अभी 49 नहीं, सभी सेम है तो रीअरेंज करूँ जो भी करूँ इट्स गोना रिमेन सेम। Okay, for a single value it's already there. For this sum of sub distinct है, so we can add all of them. So now let us take an example जो मैंने लिखा था, जो मैं खुद यूज किया था while solving. Okay, this one is a good example, which is see this example. You have 3 5, you have, I can rearrange, okay, so if I can rearrange them, let me say कि मैं frequency की वजह मदद से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। Let's say you have 3 threes, sorry 6 threes, 2 twos and 5 twos, sorry 2 fives, 6 3 2 twos and 2 fives. So how can you arrange them ताकि हमको some maximum मिले? Like I can do something like this, 6 3 को पहले पुट कर दो, and after 2 2 5 5 I can do something like this, but अब मेरा सम सिर्फ 6 होगा, उसके बाद का कुछ भी वैल्यू नहीं करेगा, so it's useless to do some make the rearrange like this, ऐसे अरेंज नहीं करेंगे। again wait a minute, again what can I do then, how can I maximize this sum? Okay, let us observe something, पहले इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, values वो ले लेते हैं। Let's say I'm taking, let's say for now I'm just taking it with 2 and let me just take it as 2, ये both are same, दोनों frequency same, can I put something like this? I don't want to do this because then तो ये ले लूंगा, ये नहीं ले पाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑल्टर करके ऐसे लिख सकता हूँ, अभी कोई भी दोनों वैल्यूज आसपास नहीं आ रहा है, सो वी आर ऑलवेज गुड टू गो। नाउ व्हाट इफ यहाँ पर एक 3 रहता, कैन आई पुट हियर 3? नो, बिकॉज इफ आई पुट हियर 3 देन आफ्टर दिस 3 ये सब आई कैन पुट, बट सम बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ इस 2 के बाद 3 पुट कर दूंगा, देन सी आई कैन टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट, ओके गुड, सब ले सकता हूँ। व्हाट इफ यहाँ पर 3 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, अगर 2 रहता, अगर 3 रहता तो भी हो जाता, 4 अगर रहता, कैन आई टेक देन? ओके दिस वन 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, अब 4 के लिए लेते हैं, 3 4 से 2 2 से, 2 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 है ना, ऑब्वियसली आई कांट पुट 2 3 हियर, देन आंसर 6 होगा और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो अच्छा सम नहीं देगा। कैन आई पुट 3 समवेयर हियर? नो, देन आल्सो द सेम थिंग, कैन आई पुट 3 हियर? well yes I can put, then I'll get this 3, get this 2, get this 3, get this 3, but after that I'll get nothing, so yeah I am saying कि I can get a sum of uh, 9 this 11, sum of 11, but is it the best? No, it's not the best. Now try to think like this, if I put 3 over here, can I put? Yes, because after putting 3 after 2 is always best, because 2 3s कभी नहीं आएंगे ऐसे, कंजिक्यूटिव 3 नहीं आएंगे, तो कुछ x के बाद अगर मैं पुट करूँ 3 को, या फिर कुछ x के पहले मैं पुट करूँ 3 को, इट्स ऑलवेज बेटर। और ये 3 क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यू कैन सी फ्रॉम हियर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। सो what can I say? Let me just see. Okay, am I recording or not? Yes, I am. Okay. Now, what can I say? Can I put another 3 here? Because if I put 3 here, then after this 2 operation, ये सब cancel हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 को यहाँ पर put करूँ, दोनों 3 को, I can take, but after this nothing will gonna work. But इसके बाद कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया, तो मैं ले सकता हूँ।
4 के लिए भी ले सकता हूँ। ओके, अब 4 के लिए ले सकता हूँ। लेट अस ट्राई फॉर 5। आई हैव 5 3s 2 2s, जहाँ पर से मैंने दोनों 2 को तो प्लेस कर दिए थे। यही बेस्ट ऑप्शन है 2 को प्लेस करने का, और कोई 2 को प्लेस करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 2 वी नो ऑल्टर अगर होगा, क्योंकि वो 2 के टाइम भी हमने दिखा दिया था, लाइक 3 3 2 2 तो अच्छा ऑप्शन नहीं है, राइट। और तो मैं हमेशा ऐसा ही करूँगा कि इस 2 के यहाँ पर कर दूंगा। नाउ another thing you guys can think कि what if I make something like 2 3 2 3, ये भी तो मैं बना सकता फॉर 2, लाइक फॉर दिस 2 2, दोनों 2 2 जगह। यस आई कैन मेक, देन आई कैन ऑल्सो गेट द आंसर। लाइक इसके लिए भी चल रहा है। लेट्स से आई हैव 3 3s, इसके लिए भी मैं प्रूफ कर देता हूँ कि अगर ये कॉम्बिनेशन लेता है। लेट्स से आई हैव 3 3s and 2 2s, I can put 3 here, yes it's good to go. If I have 4 3s I can put, now see why it's not optimal। इफ आई हैव 4 3s and 2 2s ना, इसके लिए काम कर रहा था इस कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं करेगा। क्यों? till now I have 2 3s 2 2s, I have to put more 2 3s, more 2 3s, right। 4 3 है, 2 3 पुट कर दिया और 2 3 बाकी है। इस वाले में क्या कर रहा था, दोनों 3 को मैं यहाँ पर पुट कर रहा था, लेकिन इस बारे में मैं कहाँ पर पुट करूँ? यू गाइस कैन से लास्ट में पुट कर भाई। नहीं, यहाँ पर तो देखो सम जो हुआ था, सम पूरा आ गया था मेरे, पूरा सम मेरा आ गया था, राइट। बट यहाँ पर सम पूरा नहीं आएगा। क्यों? एक 3 बात निकल जाएगा, लाइक वी वेर एक्सक्लूडिंग 1 3। हाउ? 2 3 2 3 3, आफ्टर दिस एवरीथिंग विल गोना बी कैंसिल, सो वी कांट टेक। ओके, नाउ देन कुछ और टेक्निक यूज करते, पहले 3 पुट करते, लास्ट में 3 पुट करते। कैन विल इट वर्क? विल इट गोना वर्क? yes it will gonna work। how? and if you see this, both these two things are same now। ये दोनों सेम ही हो गए एंड इट्स वर्किंग, बिकॉज ये जैसे वर्क करते ये भी वैसे ही वर्क करे। कैन यू पुट 2 3s एट द बिगिनिंग? नो, देन ये सब काम नहीं करेंगे ये दोनों में। सो अगर ये दोनों सेम ही आ गए, अगर ये दोनों सेम ही आ गए, तो मैं इस झंझट में क्यों पढ़ूँ? आई कैन गो विथ एनी वन ऑफ देम। सो लेट मी जस्ट गो विथ दिस वन, बिकॉज इट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो और एक रीजन है, हम हमेशा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पहले पुट करेंगे। जैसे अगर जब हम लोग इस कॉम्बिनेशन के लिए देख रहे थे, एक 3 को यहाँ पर पुट के, एक 3 को यहाँ पर पुट के, एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला तो पहले ही आ गया ना, जो कि 3 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। 3 में 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसको मैंने एट द एंड ऑफ द डे सबसे पहले ही पुट किया। सो अगर मैंने इसको सबसे पहले पुट किया इस वाले में, देन इट्स ऑलवेज गुड फॉर अस टू स्टार्ट विथ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर एंड में मैं लास्ट में 2 3 पुट कर दूंगा, क्योंकि वी नो फॉर दिस रेंज, लेट्स से ऑल ऑफ दिस आर वर्किंग, वी कांट पुट 2x ओवर हियर, देन ये सब का वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, ये सब के लिए 0 होगा। लेकिन वी कैन पुट 2x एट द एंड, बिकॉज अगर 2x हम लोग पुट करेंगे देन ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके बाद का कुछ भी ऐड नहीं होगा, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहले पुट कर। नाउ लेट अस चेक फॉर द 5। फॉर 5 I have to put more 3 3s। I will put 2 here because I see कि ये बेस्ट है। Can I put another 3 anywhere? No। यहाँ पर पुट करूँगा, खत्म खेल, पूरा ही खत्म, पूरा ही खत्म। I can't। यहाँ पर पुट करूँगा, I can take then this 3। मैं कहीं कहीं पर यहाँ पर पुट करूँगा, अगर मैंने लेट से यहाँ पर पुट किया, तो इस दोनों ये दोनों 3 हो गया, फिर इसके बाद इस सब के लिए कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। तो बेस्ट क्या हो रहा है? मैं आसान करने के लिए मैं हर जगह पर 3 पुट करके देखा था। यहाँ पर 3 पुट किया, ये सब कैंसिल हुआ, नहीं सम मैक्सिमम तो नहीं होगा ऐसा। यहाँ पर पुट किया, ये सब कैंसिल हुआ, नहीं अगेन सेम थिंग। यहाँ पर पुट किया, ये 3 के बाद ये सब कैंसिल हो गया, नहीं इससे भी अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर पुट किया, इन दोनों के, ये दोनों 3 के बाद ये सब, ये तीनों कैंसिल हो गए, नहीं। यहाँ पर पुट किया, ये 3 कैंसिल हो गया, नहीं। यहाँ पर पुट किया, ये 3 कैंसिल हो गया, नहीं। मतलब यहाँ के लिए हाँ है, बट I'll say what I'm trying to say, but at the end of the put क्या नहीं। so मैं देख रहा हूँ हर एक बार एक 3 तो निकल रहा ही है, एक 3 हम नहीं ले, ये जो 3 है लास्ट वाला जो 3 है हम नहीं ले पा रहे, ये मैक्सिमम हम यही ले सकते हैं, दिस मच। वी कांट टेक एनी मोर 3। एंड अगर इसके बाद और भी 3 आए ना, कहीं पर भी तुम पुट ही नहीं कर पाओगे। अगर शुरुआत में पुट करते हो ये खत्म हो जाएगा पूरा, बीच में पुट करोगे लेफ्ट से राइट हैंड साइड से तुम कुछ वैल्यूज मिस कर दोगे। तो ऑप्टिमली राइट हैंड साइड में ही पुट करो, ताकि एटलीस्ट इतना तो मैं ले पाऊँ।
जो 4 के लिए बन रहा था। ओके, यही ऑब्जर्वेशन मैंने किया। एंड व्हाट आई डिड हियर कि टेक द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नाउ अगेन थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया है होप तुम लोगों इंट्यूशन, बट लेट मी जस्ट टेक मोर एग्जाम्पल, वन लास्ट एग्जाम्पल विथ अनदर वैल्यू 5 एंड लेट्स से 3 हैव ऑपरेशन 4 6। हाउ कैन यू पुट, आई से इट ऑलरेडी पिछले वाले टेस्ट के से कि आई विल ट्राई टू पुट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑन एट द फर्स्ट। पुट किया, देन इन दोनों को मैं जैसे तैसे पुट कर सकता हूँ विथ ऑल्टरनेट 3, बिकॉज 3 सबसे, क्यों मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा ऑकर कर रहा है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा ऑकर करेगा उसी का प्रोबेबिलिटी है कि वो एट द एंड ऑफ द डे ऐसे कंजिक्यूटिव लेंथ बना सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। सो 3 सबसे ज्यादा ऑकर कर रहा है, राइट? यस। नाउ मैं ऐसा बना सकता हूँ, इस 5 को यहाँ पर पुट किया, यस, फिर इस 3 को अगेन पुट कर दिया। I can put 2 here, then it will not be as good as putting 3 here. Why? I can, sorry, I can do this. Then after that, if I put 3, then you guys can see like बाकी सब 3 के लिए जगह नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने 3 पुट किया, फिर एक 2 पुट किया, फिर एक 3 पुट किया, 3 फिर एक 5 पुट किया, फिर एक 3 पुट किया, फिर एक 2 पुट किया, देन देखो मैं कुछ 3 को अंदर घुसाकर अच्छा वैल्यू बना सकता हूँ, rather than ऐसे कंसेक्यूटिव सीक्वेंस एट द एंड बनाने से। So always I'll try to do alternate 3. Then again a 2 or 5, whatever you wanna take, because I can't take 5 लगातार, but I can take 5 and 2. That doesn't like वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट आई टेल अर्लियर कि 3 में बीच में पुट कर दूंगा ताकि ऑल्टर करता रहे वैल्यू, ऐसे ऑल्टर करता है 3, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑल्टर करते रहे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ऑल्टर करता रहे ऐसे। इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर 5 और 2 कुछ भी मैं ले सकता हूँ, राइट? बिकॉज वो मैक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी इससे कम है, तो वो कभी भी ऑल्टर नहीं करेगा। तो मैक्सिमम वाला मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, मिनिमम वाला नहीं करेगा। ओके, तो आई कैन पुट अगेन 3 3 3 3 5 2, लेट मी टेक 5 देन अगेन 3 देन 2। देखो 5 और 2 को तो सारा ऑकरेंस ले लिया, और 3 और एक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 5 3 ले लिया, और एक 3 में ले सकता हूँ। कैन आई टेक दिस 3? यस। शुरुआत पहले ही टेस्ट केस से यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कि आई कैन, सॉरी, I can always put the last 3 here rather than putting here or any mid side, because वहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन लास्ट में पुट करूंगा तो इसके बाद का सारा कुछ बिगड़ जाएगा। तो कैन आई टेक more 3? Can I take go for 7? No, I can't, because if I take another 3 then problem. I can't take, I have to exclude that 3 from our sum, एंड अगर मैं पहले ले लिया तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, सब चला जाएगा। तो एंड में ही मैं पुट करूंगा। Okay, that's what a good observation I did. And तो क्या बना, कुछ पैटर्न दिखा? हाँ, क्या पहले वाले, अच्छा पहले वाला बता दिया क्या? तो देखो ये जो सम है ना, दिस इज 4, दिस वाज 6, for this it was working, for 7 it was not working, and for 8 9 10 whatever it is, it will not work. So देखने का अगर नजरिया हो अच्छा वाला, तो फिर यू गाइस कैन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मैं एफ एम लिखता हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है ए, अगर इसका वैल्यू इफ इट्स लेस देन और इक्वल टू बाकी जो सारी के सारे फ्रीक्वेंसी का सम है एक्सेप्ट दिस मैक्सिमम वन, उसको मैं लेट से स्मॉल एफ से लेता हूँ, एफ एस विच इज सम ऑफ द अदर फ्रीक्वेंसीज, उन सबका सम, दैट्स द सम। उन सबके फ्रीक्वेंसीज का ऐड करने के बाद यहाँ पर 6 के लिए काम कर रहा था, 5 से तो फिर 5 के लिए ऑब्वियसली कम करेगा, राइट? व्हाई नॉट? अगर 5 होगा तो 5 के लिए भी कम करेगा, क्योंकि मैं एक से यहाँ से हटा दूंगा, देखो 5 के लिए कम कर रहा है। यूएस कैन से 4 के लिए करेगा, हाँ करेगा ना। इस 3 को हटा दिया, 4 के लिए कम कर रहे हैं। क्या 3 के लिए काम करेगा? हाँ, इस 3 को हटा दिया, हाँ काम कर रहा है। क्या 2 के लिए काम करेगा?
हाँ काम करेगा। इस थ्री को हटा दिया, फिर से काम कर रहा है। क्या वन के लिए काम करेगा? क्या वन के लिए काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वन तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही नहीं रहेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन दोनों में से कुछ टू हो जाएगा, राइट। तो वन के लिए अगर मैं ये हटा दूंगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। यहाँ पर तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बैलेंस कर दिया, मतलब इसके लिए भी काम कर रहा है। बट हाँ, तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। सो अगर, तो ऑब्वियस सी बात है। मैं, अरे भाई मैंने कहा लिखा था, वो क्यों मिल गया? ओके, ये दिस प्लस टू, दिस थिंग, ये जो बाद बाकी के फ्रीक्वेंसीज का समय प्लस टू, विच इज फोर प्लस टू विच इज सिक्स। अगर ये सिक्स रहा और सिक्स से छोटा रहा, सिक्स रहा और सिक्स से छोटा रहा, तो फिर काम करेगा। और काम करने का मतलब क्या है? मैं सबको सम में ले सकता हूँ। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, इफ इट्स ट्रू, इफ इट्स ट्रू, देन सम ऑल एरे, सम ऑफ ऑल एरे। वाई? बिकॉज आई कैन टेक एवरी वन। देखो यहाँ पर मैं हर, अगर इतना सिक्स रहता मैं सबको ले सकता हूँ ना, अगर एरे मेरा इतना साइज का रहता, आई कैन टेक ऑल ऑफ देम। एल्स आई कांट, एल्स आई कांट। इफ फॉल्स, देन व्हाट? देन इसके बाद जो जितने भी थ्रीज आएंगे, इतना तक तो मैं ले ही सकता हूँ, इसके बाद जितने थ्रीज आएंगे वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इतना तक का सम, बाकी थ्रीज का सम नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा अगर ये फॉल्स हुआ? तो आंसर होगा सम ऑफ, देखो सम, जो लो फ्रीक्वेंसी है उनको तो मैं हमेशा इंक्लूड कर रहा हूँ। सो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज प्लस, ये जो थ्रीज है ये मैं कितना बार ले रहा हूँ? थ्री का जो फ्रीक्वेंसी उतना बार नहीं। थ्री का फ्रीक्वेंसी लेट से यहाँ पर मतलब इससे ज्यादा है, सिक्स से ज्यादा है, तो फिर मुझे पता है ये सब उड़ेगा। सिक्स से ज्यादा है, लेट से सेवन एट और नाइन, ये सब उड़ेगा। तो मैं मैक्सिमम थ्री का फ्रीक्वेंसी सिक्स टाइम्स ले सकता हूँ। व्हाट इज सिक्स? सिक्स इज नथिंग बट दिस थिंग, which is total, which is this frequency, बाकी frequencies प्लस टू। उतना टाइम्स में क्या ले सकता हूँ? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रेट से एफ वी एफ लेता हूँ, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, विच इज थ्री। दिस थ्री इंटू हाउ मेनी टाइम्स आई कैन टिक इट? कैन आई टिक इट उतना टाइम जितना टाइम फ्रीक्वेंसी है? नहीं। देन कितना टाइम ले सकता हूँ? ये जो फ्रीक्वेंसीज है, बाकी सब फ्रीक्वेंसीज, विच वॉज हियर फोर प्लस टू, क्योंकि मैं दो एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, राइट। ये सब फ्रीक्वेंसीज एट द एंड ऑफ द डे देखो दो एक्स्ट्रा थ्री ऐड किया था। सो हाँ, सो इट्स जस्ट एफ ऑफ एस, सम ऑफ एफ ऑफ एस प्लस टू, and that's what I did in my code. Let me just show you guys. Okay, I made a map of, if n is 1 then do that thing. if this map में स्टोर किया फ्रीक्वेंसीज, मैक्सिमम लिया, टोटल लिया। मैक्सिमम में मैंने ले लिया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एम एक्स क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और टोटल में मेरा सारा का सारा टोटल फ्रीक्वेंसी सम कर लिया। और अगर अगर मेरा एम का साइज वन हो, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट का है, जैसे सात था, तो टू इंटू ए ऑफ जीरो, क्योंकि मैं दो टाइम्स ही ले सकता हूँ, उसके बाद तो नहीं ले सकता। सो टू इंटू ए ऑफ जीरो विच इज दिस सेवन, एंड रिटर्न। देन आफ्टर दैट आई एम डूइंग टोटल माइनस एम एक्स। टोटल क्या था मेरा? टोटल था ऑल फ्रीक्वेंसीज का सम। और एम एक्स क्या था? सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। टोटल माइनस एम एक्स करूंगा, मेरे पास ये स्मॉल इफ ऑफ समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा जो एम एक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर टू फाइव, इन दोनों का सम, टू फाइव का फ्रीक्वेंसीज का सम, सो हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम सेइंग, इफ एम एक्स माइनस टोटल इज लेस इक्वल्स टू, जो मैंने बोला कि ये कहाँ लिखा था? हाँ, यहाँ पर। इफ इट्स ट्रू, इफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यू गाइस कैन से लाइक, इस टू को अगर मैं इस साइड लेकर आऊँ तो फिर क्या होगा? दिस माइनस टू एंड लेस देन सम ऑफ एफ ऑफ एस। इफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस टू, इफ मैक्सिमम माइनस टोटल। ओके, मैंने यहाँ पर टोटल को लेकर यहाँ इस तरफ गया, तो फिर मैं कोड की तरह ही समझा दूँ। इसको अगर इस तरफ लेकर गया तो एफ ऑफ एस, समेशन ऑफ एफ ऑफ एस, this should be less equals to. If it's less equals to total minus this, then what I'm saying, sum of all value, तो मैं accumulate करते रहा हूँ। अगर नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर क्या किया है? एक्चुअली आई राइट सम कॉम्प्लिकेटेड कोड, बट व्हाट आई डिड इज कि लाइक इसके इसके अंदर सम ले लो,
मतलब इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं आंसर रिटर्न करूंगा। और वैल्यू के अंदर ले लो वो जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम, अभी तो मेरे पास एमएक्स में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन वैल में क्या जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, जो जैसे यहाँ पर 3 था वो 3 चला जाएगा। और उसको मैं फाइंड कर रहा हूँ, इफ एफ एम ऑफ ए ऑफ आई, मतलब वो अगर एम एक्स है, उस पर्टिकुलर वैल्यू का अगर फ्रीक्वेंसी एम एक्स है जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो फिर एस प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई। अगर नहीं है तो फिर एक्स प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई, लाइक बट ये वाला चीज, लाइक अगर मैं पूरे एरे में ट्रेवल्स कर रहा हूँ एंड अगर मेरा जो वैल्यू है उसका फ्रीक्वेंसी एम एक्स नहीं है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उन सबको तो सब में ले ही रहा हूँ। फॉल्स अगर हुआ, देखो सब में ये ऐड किया ना, तो मैं वो ऐड कर रहा हूँ। एंड एल्स वैल्यू के अंदर ए ऑफ आई पुट कर दो, मतलब वैल्यू के अंदर एल्स मतलब क्या, अगर वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है तो वैल्यू के अंदर वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो ले लो। तो वी एफ आ गया एल्स में। अब एस प्लस इक्वल्स टू, ये तो था ही इसके अंदर, ये तो था ही, और प्लस इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं, ये वी एफ जो कि मेरा वैल है, वैल मैंने स्टोर किया, प्लस इन वी एफ इंटू टोटल प्लस टू, जो कि यहाँ पर लिखा टोटल क्या है मेरा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज टोटल प्लस टू। दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट ये ऐसे वर्क कर रहा है। एंड मुझे पता है कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आई होप लॉजिक समझ में आ गया, बट कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। यू गेस कैन राइट इट इन योर वे, बट द मेन थिंग इज ही, द ओवरऑल लॉजिक इज दैट कि दिस थिंग, f of s should be less or equal total frequency except or excluding fs प्लस टू। अगर ये होल्ड किया तो फिर मैं पूरा एरे को अपने आंसर में ले सकता हूँ, पूरा एरे का सम। और अगर ये नहीं होल्ड किया तो फिर वो सब तो वैल्यू में ले ही सकते हो जो सब टोटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब मैक्सिमम कुछ होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू को मैं कितना टाइम से ले सकता था, मैं मैक्सिमम वाले को कितना टाइम से ले सकता था, देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स। अगर 4 से ज़्यादा हुआ तो फिर मैं नहीं ले सकता। तो ये 4 कहाँ से आया, ये जो टू टू का ऑकरेंस क्या है, टू, टू प्लस टू, इतना बड़ी मैं ले सकता हूँ। तो इसलिए दिस थिंग प्लस टू। अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टोटल है, जो मेरा इस टू का ऑकरेंस है, इस वो ऑकरेंस प्लस 2 टाइम्स मैं ले सकता हूँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू प्लस 2 टाइम्स टोटल, लाइक ये जो 2 प्लस टोटल का जो, टोटल इन द सेंस टोटल में क्या है मेरे सारे के सारे ये वाला चीज टोटल फ्रीक्वेंसी एक्सक्लूडिंग एफ एस, एंड उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो वैल्यू है मेरा। तो दैट्स व्हाट आई डिड। Okay, next question. I took too much time on this problem, like for explaining also. It was not that hard. Okay, for this one it was pretty constructive. Like, yeah, I got one OA. OA बोल रहा हूँ क्या? हाँ, WA. So what they said कि हाँ, they said for problem number B they said कि you have an array of binary string. You have a string of binary string. You can delete. You wanna make it alternating. Alternating मतलब ऐसे और ऐसे. You wanna make it like this, and you have to, for this you have to delete some values. How? You can delete 0 1 0 1 anywhere, any times you want. But there is a condition. If you delete 0, then after that you have to delete 1. If you delete 1, then after that you have to delete 0. You can't delete 2 ones consecutively. That's what the problem statement is. And you want to find a minimum operation to make this array alternating. So this is already alternating, so the answer is 0. What is an alternating array? This is an alternating array. This 1 is also an alternating array. This is 0 is also an alternating array because there is only one element. An empty array also should be alternating, but empty नहीं होगा in minimum. Okay, example लेते हैं for this. Okay, what they said, can I take this one? Yeah, like take क्या मतलब alternate करने के लिए शुरू तो कहीं से होना पड़ेगा. So yes, 1 is okay. 1 के बाद 0 है, which is okay. 1 0 या okay, alternate कर रहा है. Can I take this 0? No, ये 0 प्रॉब्लम कर रहा है. इसको मैं एक लंबा दाग देके प्रॉब्लम जो कर रहा है उसको मैं लंबा दाग दे रहा हूँ, क्योंकि 1 0 के बाद फिर से 1 आना चाहिए. ये 1 आ सकता है, हाँ 0 के बाद 1 आएगा, अच्छा ठीक है.
इस वन के बाद अगेन वन नहीं प्रॉब्लम क्रिएट, तो मैं देख रहा हूँ दो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एंड नाउ आई ना डिलीट इन दोनों को, but I have to delete 0 then 1 then 0 then 1, or I can delete 1 0 1 0. Can I do that here? Yes, I can delete the 0 at first, then delete the 1 at after that, then I'll get 1 0 1 0. So the operation is 2. Okay, good. Till now it's pretty good. For this, or for this, can I, is this 1 is okay? Yeah, क्या ये 0 okay है? यही तो मैंने एक्सप्लेन किया ना. What the heck? I should go with this one, but this one, or okay. Can I take this one? Yes. Can I take this 0? Yes. Alternate. Can I take this 0? No. Alternate नहीं है. 0 के बाद 1 आना चाहिए. नहीं, 1 आना चाहिए. 1 आया फिर 0 आया. So I have to delete 2 zeros. Okay, ये दोनों प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो फिर मेरा ये बन जाएगा. Can I delete? That's the fucking question. I can't. I just can't. Why? Because if I delete this 0, let ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. If I delete this 0, after that I can only delete a 1, but I can't delete this 0 again. So after deleting this 0, it will become something like 1 0 another 0 फिर 1 0, because ये बीच वाला delete कर दे. Now I have to delete a 1. I can't delete this 0, but this 0 is creating a problem, so for that I have to delete a 1. What can I do? I have to delete this 1. I have no other option. But now, is my problem solved? No. Why? Because it's still not alternating. So I have to delete this 0 after that also. So I have to delete it. And that's how I'll get 3 operation. And I'll make 0 1 0. And that's what it is. 3 operation. For this, let us take this example. It's also a good example. Alternating, problem. Can I delete this one? Yes. Can I delete this one? No. Because I just delete this one. So I have to delete a 0. Let me just delete this. Can I delete this one now? Yes. Can I delete this one now? No. I just deleted this one. Can I delete this 0? Yes. Can I delete this one? Yes. Now I can. So I'll only left with only 1 1. Is there any better option? 1 2 3 4 5 6. Yeah. There is no other better option, right? Because this 3 was creating a problem, and for each one I'll delete 1 0 at least. So at the end of the day, left with only 1 1, and I took 5 operations. At first this, then this, then this, then this, then this. So total 5. The answer is 5. Now for this one also I made a custom test case, which was something like it was like 0 1 1 1 0 0 1 1 0. Now try to see, it's not creating a problem, but here this segment is creating a problem, this segment is creating a problem, this segment is creating a problem. So it's at the end of the day, bunch of segments which are creating problem because they are consecutively same. So what can I do is key, I have to delete these 2 ones. Whatever I do, I have to delete these 2 ones, else तो नहीं बनेगा, right? Let's say I delete something from here या कुछ भी, but ये तीनों 1 तो एक साथ रहेंगे ही रहेंगे, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा. So I have to delete. Now for this segment, I have to delete 2 ones. Okay. For this segment, I have to delete 1 0, because I don't have to delete 3 ones ना. अगर 3 ones delete कर दूंगा फिर से 0 0 नहीं, मुझे बस 2 1 को अगर मैं delete करूँ then एक 1 रह जाएगा जो कि alternate create करेगा. So let me just delete these 2 ones. For now 0 1 0 0, 2 0 एक साथ नहीं रह सकते. I have to delete 1. Okay. 2 1 एक साथ रह सकते नहीं. I have to delete this one. Now after that 0, अगर एक और 0 रहता तो फिर I have to take this one. But now since यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको white color से लिखता हूँ. Okay. So ये मैंने देख लिया.
ये 2 डिलीट करना पड़ेगा, ये 1 डिलीट करना पड़ेगा, ये हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू डिलीट 1? 3 टाइम्स टोटल, 1 3 टाइम्स ना, सो 1 के लिए 3 टाइम्स, 0 मुझे डिलीट करना होगा एक बार. I know I can't delete these two ones exactly at the same time, so let me just uh, clear this thing. I know I can't delete this one exactly like one after another. So what I'll do is I'll better take it. I'll better take it, or like I'll delete it. Obviously, I have to delete. After that, I can delete it. So what should I do? Should I delete this 0? Or should I delete this 0? Which one is optimal? Uh, I will say this 0 is more optimal, because at the end of the day I have to take 1 0. I have to delete 1 0. So delete that 0 which have to be deleted, right? So I'll delete this 0, and after that, after doing that, which one should I delete? I know I have to delete 1 1 from here again, so I have to delete this one. Now I have to delete. So I have till now I have deleted these 2 ones. So this 3 is 2 and this 0 is 0 right now, because I have already deleted. So it's not creating a problem. But this one this one is still creating a problem, because there is 1 1 left, like this from this block. Now I have to delete this one. But for that I have to delete a 0, which was not, listen to me, which was not creating a problem. Till now I have deleted those zeros which were creating a problem. Like again, if I show you this, from this branch, this one was creating a problem, so I'll delete it. After that I have to delete a 0. Which one should I delete? Optimal one, I would say. So let's delete this one. So I'll delete. Now I have left 2 and this. Now I have to delete this one also, so I'll delete it, and I have one problem segment. So this 2 is resolved, and this 0 is also resolved, right? Like we have deleted. Now I have to delete this one. But last operation, what was our last operation? We delete 1, then 0, then like this one created 1 0, then again 1. Now I can only delete 0, then I can delete 1. But for my current operation, I have to delete 0. But I have to delete a 1 in our. The problem is with our 1, but I can't delete 1 because my operation is saying I have to delete a 0. Then I have no other option. I have to delete this, or if I have to delete this, or I can delete this, but it will create a problem, because if I delete this, then just trying to see, if I delete it, then 1 1, and let's say after that I delete it, then this will gonna happen. But what if I just delete like this? I'll delete from here, then it will not create a problem. So I'll delete this 0. So, and after that I am deleting this one. Okay, so this one has been deleted, and our sequence become 1 0 1 1 0 1. So what, this is one thing, and another thing, let us say something like this. Now for this one I have to delete this 0, for this one I have to delete this 0, because consecutive ना. or let's say for this one I have to delete this 0, because एक one के लिए like for this one नहीं, like I say like this, but if I delete this one, because it's have to be deleted. Now after that I can only delete a 0, so I'll delete this 0 because it's optimal. Then I can only delete a 1, this one is creating a problem, delete it, this 0 is creating a problem. So it's just nothing but I have did three operation. So if at every position what we are, like, let me just conclude everything now. Every position what we are watching, like here was 3 consecutive 1. So I was checking how many ones I have to delete it. I have to delete let's call it C1. I have to delete 2 ones. For this block I have to delete 1 1. So at the end of the day, what we are storing, how many 1 we have to delete it. We have to delete it, like C1, let's say C1 denotes that, and we have to delete 3 ones. And how many zeros we have to delete? We have to delete 1 block of 0. So let's call this C0, and that's 1. Which one is maximum? This. So I know I have to delete these 3 ones, and for each one, listen to me, for each one I have to delete a 0 after that.
and I will always delete this one first. I will not delete 0 first because I want to delete maximum one, right? I want to delete the maximum one. So why I want to delete maximum one? Because if I delete the minimum one, let's say I delete this 0 at first, then I have to delete the maximum one at the end, but 0 is not present here. Like what I am trying to say, let's say 1 0 0 0 and then 1 1, and let's say 0 0. Now C0 is 1 2 3 and C1 is 1. Should I delete C0s first or 1 first? Obviously C0s first, because it's creating more problem. Like if I try to delete this one, let's say I'll delete this one. Now I can delete any 1 0. Okay. Now I have to delete a 1. Which one should I delete? This one. Okay. You are saying it will gonna what? Let's till now we have deleted 3. Okay. And after that I can delete a 0. So I'll delete this 0, let's say, or this 0, whatever, both us. Now I have to delete a 1. Let's make, because it's still not consecutive, because we have 0 1 0 0. So I'll delete this one. Okay, still not consecutive, 3 zeros. I'll delete this 0. So too many operations. But if I just delete the maximum one, let's say I am deleting 0 first, then 1, then 0, which is creating problem, then I delete a 1, because I have no other option. I know there is no bad ones, but I have to delete a good one because I have no other option. I have to delete this 0 or this 0. I have to delete it. Like after this 0 I delete this one, then I delete this. Now I have to delete this. Though till now it's perfect, this 1 this 0 this one alternating, but I have to delete this 0. So I have to delete 1 1, then I'll delete a 0. So I'll left with 1 0. So I'll have to I'll always choose the maximum one at first. So I hope I explained pretty good there and what I was saying. Okay. So I will delete the first value at first, and after that I know for this, like if you see here, for C0 was 3, C1 was 1. For delete I have to delete 3 zeros. Delete. For these 3 zeros, how many maximum one I have to delete? Like I know this value is greater than this. That means while deleting these zeros, I will obviously delete the bad ones. Let us call this is a bad one. This is a good one. I will always delete the bad ones because bad ones का count कम है. Good बैड जीरोस का काउंट ज़्यादा है, तो जब मैं बैड जीरोस डिलीट कर रहा हूँ उसका काउंट क्योंकि ज़्यादा है, तो फिर बैड जीरोस के साथ, क्योंकि एक जीरो के बाद एक 1 मुझे डिलीट करना होगा, तो एक बैड जीरो को मैं अगर डिलीट कर दिया उसके बाद मैं एक बैड 1 को ही डिलीट करूंगा, और ऐसे करते करते आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम बैड 1 नहीं बचेंगे क्योंकि बैड 1 का काउंट कम है, और बैड जीरो अभी भी बचे रहेंगे क्योंकि बैड जीरो का काउंट ज़्यादा है. तो बैड वंस तो अभी भी मेरे पास है भी नहीं, लेकिन बैड वंस सारे खत्म हो गए. मेरे जितने भी बैड वंस थे, जो वन अच्छे नहीं थे, जो वन कंसेक्यूटिव थे, वो सब डिलीट कर दिए क्योंकि वो कम थे काउंट में. वो सब कैसे डिलीट हुआ? बैड जीरोस की वजह से. एक बैड जीरो डिलीट किया, एक बैड वन डिलीट किया, बैड जीरो डिलीट किया, बैड वन डिलीट किया, ऐसे करते करते बैड जीरोस अच्छे से डिलीट, बैड जीरोस की वजह से बैड वन सारे डिलीट हो गए. लेकिन बैड जीरोस अभी भी कुछ बचे हुए हैं. लेट्स, जैसे यहाँ पर था कि ये जीरो डिलीट हुआ, ये वन डिलीट हुआ, ये जीरो डिलीट हुआ, और उसके बाद देखो सारे बैड वंस डिलीट हो गए. अभी मेरे पास ये है कुछ, लेकिन मेरे पास अभी भी एक बैड जीरो है क्योंकि बैड जीरो का काउंट ज़्यादा है ना, यही प्रॉब्लम है. तो मुझे एक अच्छा वन डिलीट करना ही होगा. सो आई डिलीट इट, देन आई कैन डिलीट दिस बैड जीरो. सो मुझे कितना वन लगा, कितना वंस डिलीट करना पड़ा. आई हैव टू डिलीट दिस ऑब्वियसली दिस मेनी बैड जीरोस which is 3. Do we have to think about the bad ones? नहीं, I don't have to add +1 here because C1 bad ones एक था. नहीं, I don't have to think about that because bad zeros की वजह से bad ones always delete होंगे. Always. Oh shit. Okay, I hope. Shit. हाँ. So bad zeros की वजह से bad ones always delete होंगे. So why should I take care about that? बिकॉज बैड जीरोस का काउंट ज़्यादा है. बैड वंस तो डिलीट होंगे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वंस भी डिलीट होंगे. तो क्या मैं ऐसा करूँ, बैड जीरोस लिखूँ फिर प्लस
बैड वंस लिखूँ जो कि वन है यहाँ पर, जितने सारे बैड, और उसके बाद सम वैल्यू जो अच्छे वन है, अच्छे वन, अच्छे वन। तो एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, ये क्या है, ये चीज क्या है, वन, वन क्या था, सी वन, सी वन प्लस अच्छे वन, लेट मी कॉल दिस ए सी वन, क्योंकि सी वन तो डिलीट हो ही जाएगा बैड जीरो की वजह से, और अच्छे वंस भी कुछ डिलीट होंगे, और कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा वो कितने हैं। अगर बैड जीरो तीन रहा तो फिर मुझे दो वंस तो डिलीट करने ही होंगे, आई कैन से। क्यों? क्योंकि एक जीरो एक वन को खाएगा, एक जीरो के बाद एक वन को खाएगा, फिर एक जीरो लूंगा, फिर एक वन लूंगा, फिर एक जीरो लूंगा, तीन जीरो डिलीट हो गए, उसके बाद एक वन लूंगा। बट वन नहीं भी ले सकता हूँ, क्योंकि अगेन तीन जीरो जब मेरा हो गया, मतलब तीन जीरो बैड जीरो मैंने खा लिए, और उसके लिए लेट से ये बैड वन था, ये बैड वन था, ये बैड वन था, और ये सारे बैड जीरोस थे, बैड जीरोस, बैड जीरोस, बैड जीरोस। ये एक बेचारा गुड वन था जो काट गया, लेकिन इसको काटना ही पड़ा, क्योंकि इस जीरो के बाद इस जीरो पे, इस जीरो को काटने के लिए मुझे एक वन चाहिए। तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट कितने सारे बैड वंस है, आई जस्ट वांट कि ये सारे के सारे जीरोस कट जाए, मैक्सिमम वाला कट जाए, और वो मिनिमम वाले को लेकर कट जाएंगे, और मिनिमम वाला कितना चाहिए, मैक्स टू मैक्स, इन मैक्सिमम का वैल्यू माइनस वन। देखो यहाँ पर तीन जीरो से तो दो वन का हेल्प लूंगा इनको काटने के लिए। एंड क्या वो दो वन हमेशा सफिशियंट होंगे? हाँ, क्योंकि अगर और एक वन बैड वन होता तो फिर तो दोनों का काउंट सेम हो जाता, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि सी जीरो बैड जीरो ज्यादा है बैड वन से। अब लेट मी जस्ट गो हिट ऑन दिस सिंपल यहाँ पर यहाँ पर, और अगर दोनों का इक्वल रहा, सी जीरो अगर इक्वल सी वन हो गया, तो फिर आई हैव टू डिलीट दिस वन देन दिस जीरो, दिस वन दिस जीरो, देन आई व्हाट कैन आई से, आई कैन जस्ट सिंपली से कि अगर दोनों सेम रहा, अगर सेम नहीं रहा तो फिर व्हाट आई डिराइव, अगर सेम नहीं रहा तो फिर जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम है दोनों में से, मैक्सिमम को मैं दो टाइम्स लूंगा, लाइक मैक्सिमम तो होगा ही एक बार, मैक्सिमम तो हो गई, प्लस मैक्सिमम मतलब क्या, मैक्सिमम वाला बैड जीरो और बैड वन में से जो मैक्सिमम, लेट से जीरो बैड वन मैक्सिमम, और उसके बाद मैक्सिमम माइनस वन टाइम्स में वन लूंगा, राइट, जैसे तीन जीरो ले ले, और तीन जीरो माइनस वन टाइप ये लो, तो ये एट द एंड ऑफ द डे टू इंटू एम एक्स माइनस वन, अगर इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल है तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एक जीरो के लिए वन को मुझे हमेशा काटने होगा। क्यों काम नहीं करेगा? जस्ट सी, वन जीरो डिलीट किया, फिर एक जीरो डिलीट किया, then again one, then again zero, then again one, then again zero, and you can see if I delete this one, then I have to delete this zero, so बैलेंस कर दिया, अगेन डिलीट दिस वन, डिलीट दिस जीरो, बैलेंस कर दिया, तो माइनस वन का कोई सवाल ही नहीं आ रहा। लाइक हाउ कैन आई, लाइक नो मैटर, लाइक यहाँ पर कैसा था, मैं मैक्सिमम वाले को पहले चूज कर रहा था ना, यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम वाले को पहले चूज करूँ, मैक्सिमम कोई भी नहीं है, तो एक और जीरो में से दोनों को ही दिखा दे, तो एक को एक टोटल मुझे सी वन कितने, सी वन वन टू, सी वन भी टू है और सी जीरो भी टू है, लेट से मैंने वन डिलीट किया, जीरो डिलीट किया, वन डिलीट किया, उसके बाद मुझे जीरो डिलीट किया, और वट एवर आई कैन डू, आई कैन, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो, पहले वन डिलीट किया फिर जीरो, लेकिन मुझे ये सब डिलीट, ये सभी के सभी डिलीट करना होगा, वन जीरो, और उसके बाद मुझे कोई भी गुड जीरो को छेड़ना नहीं होगा, क्योंकि दोनों का काउंट सेम है, तो बैड जीरो जितने वो बैड वंस को लेके ही जाएंगे, और मुझे एक्स्ट्रा देखना नहीं पड़ेगा दोनों में से जो कोई भी, मतलब भाई मैं पहले वन को डिलीट करूँ फिर जीरो को, या फिर जीरो को आफ्टर दैट वन को। सो दिस, इसके मदद से मैं क्या बोल सकता हूँ, बाई दिस लॉजिक, दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व, ऑल्टरनेट डिफरेंस कैन बी, हाँ, difference can be one or less than, less equals one, like that's why I just count, like another thing, it can't be like this, like अगर मेरे पास वन का काउंट ज़्यादा है और जीरो का काउंट बहुत कम है, लाइक वन का काउंट से और ज़्यादा है, तो फिर I just can't make it alternating, because no matter what I did after a certain point of time ये सारे जीरोस एग्जॉस्ट हो जाएंगे और मेरे पास कुछ वंस हमेशा बचे रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट्स व्हाट आई कैलकुलेटिंग, टोटल जीरो टोटल वन में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि टोटल जीरोस कितने, टोटल वंस कितने, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का, मतलब टोटल जीरो माइनस टोटल वन, टोटल माइनस टोटल जीरो, वॉट एवर यू वांट से, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन टू आ जाते, तो फिर इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल वन 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 एंड आई हैव टू जीरो, चार वन है दो जीरो है, नो मैटर व्हाट आई डिड, लेट्स से मैं इसको ऐसे ही पुट करता हूँ समझने के लिए,
1 2 3 4 2 0 सो और एक 1। हाँ अब ठीक है। नाउ आई कैन नेवर मेक इट ऑल्टरनेटिव बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट मी जस्ट ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डिलीट दिस देन आई डिलीट दिस देन आई डिलीट दिस देन आई डिलीट दिस आई हैव ओनली लेफ्ट विथ वन। सो ग्रेटर देन 2 हुआ तो फिर माइनस एल्स व्हाट आई एम सेइंग C0 और C1 मैंने तो वैल्यू लिए। ट्राई करो फाइंड करने के ट्राई for all up till n try to find all bad ones and bad zeros and how I'm calculating that s of I अगर इक्वल s of I minus 1 हो और I greater than 0 ऑब्वियसली लाइक अगर ये वाला इस पिछले के इक्वल हो तो फिर कंज्यूटिव है तो C0 को प्लस प्लस करो। अगर वो 0 है अगर 1 है तो फिर C1 को प्लस प्लस करो एंड उसके बाद दोनों का मैक्स ले लो और एक में मीन ले लो। मीन ये से भी कर सकते हो और ये कंडीशन ऐसे भी चेक कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो चेक लाइक इफ C1 इक्वल्स टू C0 बोथ अगर इक्वल हो तो फिर 2 इंटू एम एक्स। अगर नहीं है तो फिर जो मैक्सिमम है वो 2 टाइम्स मतलब वो 2 टाइम ये फॉर्मूला कैसा है मैंने यहाँ पर ही समझा है। मैक्सिमम 2 टाइम्स माइनस 1 सो 2 इंटू एम एक्स माइनस 1 दैट्स व्हाट we have done this one also. Now the last one, this one pretty interesting. For how long I am recording? 51. Okay. बोला गया है एक ग्रिड है। ये उतना हार्ड नहीं कंपेरेटिवली टू द प्रीवियस टू। लाइक इसमें बस एक स्टैंडर्ड है थोड़ा। वी हैव गिवन अ ग्रिड व्हाट दे सेड कि हर एक रो के लिए कुछ कुछ वैल्यू असाइन किया हुआ है V1 V2 हर एक रो के लिए। हाँ और ये सारे पोजीशन पे कुछ वैल्यूज है। ओके ए आई ए जे करके। अब बोला क्या गया है अगर एक कंप्लीट रो ये पूरा का पूरा रो क्वेश्चन में समझा रहा हूँ अगर एक कंप्लीट रो मैंने डिलीट कर दिया कैसे कर सकते हो मैं बोलूँगा अगर ये डिलीट कर दिया तो फिर मैं जीत जाऊंगा और हाँ मैं जीत जाऊंगा। और क्वेश्चन में और एक चीज़ बोला गया कि मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे एक कंप्लीट रो को डिलीट करने में। एक कंप्लीट रो एक जैसे पूरा कंप्लीट रो इसे डिलीट करने में। अब डिलीट का ऑप्शन ऑपरेशन कैसे है 2 ऑपरेशन है मेरे पास। मैं कोई भी एक एलिमेंट ऐसे 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 कोई भी एक एलिमेंट पिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एलिमेंट पिक किया और मैं क्या कर सकता हूँ उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कोई भी पर्टिकुलर रो के ये जो वैल्यूज असाइन हुए वहां से। जैसे इस रो के ये जो वैल्यू V2 से मैंने माइनस कर दी इसको लेट से ए को माइनस कर दिया। अगर ये वैल्यू घट के लेस देन 0 आ गया और इक्वल टू 0 हो गया तो फिर मैं इस रो को कम्प्लीटली डिलीट कर दूंगा। मैं बोल सकता हूँ आई डिलीटेड दिस। सो अगेन क्या और लेट्स से आफ्टर डूइंग दिस माइनस ये 0 नहीं हुआ लेट्स से अब ये V2 डैश बन गया देन मैं कोई और वैल्यू पिक करूंगा और इसको फिर से इससे माइनस करूंगा। क्या ये माइनस करने के बाद अगर लेस देन 0 हो गया तो फिर डिलीट कर दिया और इसको मुझे मिनिमम ऑपरेशन में करना है। ओके एंड उसके साथ साथ क्या बोला है कि आई कैन ओनली डू दिस ऑपरेशन फ्रॉम दिस इंडेक्स लेट्स से फ्रॉम दिस इंडेक्स लेट्स से मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ वैल्यू तो मैं जो डिलीट करना होगा ना इस वैल्यू से वो मैं ये V4 V5 ऐसा होगा। ये मैं ये V4 से कर सकता हूँ V3 पे कर सकता हूँ V2 पे V1 पे इसके नीचे वाले में नहीं कर सकता। आई कैन ओनली डू दिस ऑपरेशन इसके ऊपर का सारे में। जैसे आई कैन डू दिस ऑपरेशन ऑन V3 इसको V3 से इसको माइनस कर दो V4 को इससे माइनस कर दो V3 को इससे माइनस कर दो V2 को इसको माइनस कर दो V1 को इससे माइनस कर दो। लेट्स से आप V1 से माइनस किया इसको तो ये माइनस ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से एलिमेंट चूज किया इसके लिए ऑप्शन है मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ से डिलीट किया और बी मैंने डिलीट किया इसका मतलब लेट से बी है इसके था और इसके बाद ये 0 बन गया तो फिर हमारा 2 ऑपरेशन स्टार्ट ऐसा कर सकता हूँ। और आई कैन डिलीट इससे ए को डिलीट कर दिया लेट्स से एंड उसके बाद मैंने इसको बी से डिलीट कर दिया लेकिन वो ऑप्टिमल नहीं होगा। लाइक इसको अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो फिर मैं क्यों ऊपर जाऊँ। सो ऐसा है। और एक ऑपरेशन है मेरे पास आई थिंक वो वाला था कि अगर एक हाँ ये तो स्टेबिलिटी वाला हो गया स्टेबिलिटी अगर 0 से और अगर कोई भी लेवल लेफ्ट विथ 0 पीसेस लाइक
जब मैं इसको उठा के इसमें जाके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तब मैं इस एलिमेंट को भी डिलीट कर रहा हूँ। ऐसे करके लेट से मैंने फिर इस एलिमेंट को भी पिक किया, इसको जाके सब्ट्रैक्ट किया, इसको भी पिक किया, इसको यहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट किया, ये तो जीरो नहीं बना लेकिन ये सब डिलीट हो गए, तो फिर ये पूरा एम्प्टी हो गया, और जब ये एम्प्टी हो गया तब हम जीत गए। तो ये दो ऑपरेशन है हमारे पास। ओके, how can I solve this, or let us take an example at first. Let's say this from here, ये जो है वैल्यूज है, फर्स्ट रो का वैल्यू 10 है, देन सेकंड रो का वैल्यू 20 है। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन टेक दिस 5 एंड आई डिलीट फ्रॉम दी फर्स्ट रो का जो वैल्यू है जो 10 है, लेकिन 2 to 2 का वैल्यू 10 है, 5 5 का वैल्यू 20 है। फॉर दिस आई कैन टेक दिस 5 एंड आई कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एनीवेयर, लाइक 10 से भी डिलीट कर सकते हो, 20 से भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं 2 पिक के सिर्फ 10 से डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे वाले से मैं डिलीट नहीं कर सकता, नीचे वाले कुछ वैल्यू से, नीचे जैसे 5 है और 5 पे 20 ऐसे नहीं, आई कैन डिलीट, बट आई कैन डिलीट 5 के लिए 20 और 10 बोथ से, क्योंकि दोनों ही इसके ऊपर है। सो फॉर 5 कैन आई डिलीट, लेट अस ट्राई टू डिलीट दिस 10। सो 10 डिलीट हो गया और 5 भी ऐसे डिलीट हो गया, यहाँ पर अभी दो इंटीजर्स बचे और 10 5 हो गया, अभी माइनस हो गया। लेट मी टेक अनदर 5 एंड डिलीट इट, एंड ये 10 अब डिलीट हो गए, 0 हो गया, क्योंकि 10 5 हो गया था, इस 5 से सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर और एक 5 चूज कर 10 5 हो 0 हो गया, 5 माइनस 5 0। सो मेरा दो ऑपरेशन लगे, सो आंसर इज 2। फॉर दिस वन हर एक में वैल्यू असाइन है 0 0 0। I can delete I can pick any one of them, and I can delete from, I can subtract from any value. Let's say I took this 3, then I subtract it from this one or this one, but I'll delete this one, right? I'll delete this value, and since I will delete this value, what will gonna happen, ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। तो अगर ये डायरेक्टली डिलीट हो गया तो ये पूरा रो एम्प्टी हो गया, तो आंसर 1। ओके, फॉर दिस वन व्हाट आई डिड, मैं डायरेक्ट क्विक में आ रहा हूँ, बिकॉज यही एक ही ऑब्जर्वेशन था, ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर है। वाई, ये जो एलिमेंट्स है इन सबको अगर मैं डिलीट कर दूँ हमेशा आंसर आ जाएगा, हमेशा आंसर आएगा। तो मैक्सिमम तो आंसर है एम, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि अगर मैं सारे कॉलम्स को डिलीट कर दूँ सो इट ऑलवेज पॉसिबल, एंड वी नो आई हैव टू डू एटलीस्ट वन ऑपरेशन, बिकॉज एट फर्स्ट तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो एक पूरा रो एम्प्टी है। तो जैसे यहाँ पर रो सारे में एक ही कॉलम थे, तो एक ऑपरेशन में मैंने डिलीट किया और फिर आंसर आ गए। सो द मिनिमम रेंज इज, मिनिमम पॉसिबल इज 1। तो इन दोनों में से आंसर होगा। सो मैक्सिमम भी एक रेंज है, मिनिमम भी एक रेंज है। सो फॉर between them we can just do binary search. So we just did a binary search. We take this sort thing is not needed, like I did it because I thought it will be helpful for this check function, but whatever. So I am just doing a binary search from mid L to R check function। अगर आंसर इनिशियली m ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम मेरा आंसर क्या हो सकता है, m हो सकता है ना मैक्सिमम, and I am doing also from 1 to m, and inside आंसर आई एम पुटिंग r माइनस मिड, राइट। अगर सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर चेक फंक्शन ट्रू हुआ, मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू, लेट्स से 1 to m में से वैल्यू होगा, लेट्स से x के लिए सेटिस्फाई हो रहा है और x m से छोटा है, x इज लाइक समथिंग लाइक, बिकॉज आंसर वी आर डूइंग बाइनरी सर्च लाइक दिस ना, and x is something someone between 1 to m, so that's a good answer, and let's say x satisfy हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर में x को स्टोर करो और r को मिड में ऑन करो कि x से छोटा वाले वैल्यूज को चेक करो। और अगर फॉर एग्जांपल y है, y के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब y नहीं होगा, y के लिए कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो y के बाद वाले वैल्यूज को चेक करो। तो l को उठा के मिड प्लस 1 करो। और चेक फंक्शन के लिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। चेक फंक्शन के लिए मैंने क्या किया, and I also used I will be honest, I used Google to know कि there is any data structure, because priority क्यों मैं यूज ही नहीं करता, like जब से मैं CF यूज करता हूँ, आई यूज लाइक लीड कोड में लास्ट एक साल पहले मैंने प्रायोरिटी क्यू यूज किया, सो आई फॉरगॉट अबाउट प्रायोरिटी लाइक मीन ही। सो आई गूगल कि इज देयर एनी डाटा स्ट्रक्चर विच विल हेल्प मी टू मेंटेन अ मिनिमम वैल्यू को मैं हमेशा डिलीट करूंगा, क्यों कर रहा हूँ मैं बोलूंगा। आई एम ट्रेवर्सिंग फ्रॉम n-1, I make a priority for any particular x, I hope you understand, for any particular x I am traversing over the grid from bottom to up. Why from bottom to up? Because from bottom to if you go, then I have option
कि मैं इसके ऊपर में कुछ डिलीट करूँ। अगर मैं टॉप से बॉटम आया तो फिर इम्पॉसिबल है, क्योंकि टॉप अगर मैंने यहाँ से कुछ वैल्यूज पिक की, लेट से मैंने इसको पिक किया, इसके लिए मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, मतलब इस वी बोर्ड से इसको माइनस नहीं कर सकता क्योंकि नीचे है, तो इसको ऊपर वाले ही कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बॉटम टू अप। सो फॉर अ पर्टिकुलर रो, for a particular row, I am traversing over the row for each one of them. And what I am saying कि for a particular I have an answer of x, right? x क्या है, मिनिमम इतने परसेंट में खत्म करना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्यू, अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज लेस देन एक्स है तो फिर प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश ये वाला वैल्यू, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया ये वाला एक वाला वैल्यू, और एस प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई जे, कि मैंने इसको ले लिया, इस वाले चीज को ले लिया। एंड एट द एंड ऑफ द व्हाट वी वांट दिस, जो मेरा सम है, इसको लिया फिर इसको लिया फिर इसको लिया, इस सम कुछ इनमें से कुछ से सब्ट्रैक्ट होके इनको लेस देन और इक्वल टू जीरो बना दे, राइट? सो आई एम जस्ट एडिंग देम इनटू सम। अगर प्रायोरिटी क्यू लेस देन एक्स नहीं है तो फिर ये कर लो। और एल सिर्फ लेट से मेरा प्रायोरिटी क्यू लेस देन एक्स नहीं है अभी, प्रायोरिटी क्यू में लाइक हाँ, प्रायोरिटी क्यू में एट फर्स्ट तो कुछ ना कुछ लेस देन एक्स होगा, लेकिन अगर एल सिर्फ में क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए ऑफ आई जी ग्रेटर देन प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप है, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी क्यू में कैसे रहेगा, लाइक ये प्रायोरिटी क्यू मीन है, हाँ, तो टॉप में सबसे मिनिमम एलिमेंट रहेगा। लेट से मैंने इस इंडेक्स को पिक किया, फिर इस इंडेक्स को पिक किया, आफ्टर दैट इस इंडेक्स को पिक किया, और सिंस आई एम गोइंग लाइक बॉटम टू अप फॉर दिस रेंज, फॉर दिस थिंग, क्या ऑप्शन हो सकता है मेरे, ये तो हर एक के लिए चेक करूंगा। फॉर इसके लिए मैंने बोला फॉर दिस रो ट्राई टू फाइंड द मैक्स एक्स वैल्यूज, एक्स लेंथ का बोलूँ या फिर टॉप एक्स वैल्यूज जिनका सम करने के, जिनका सम मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमम सम है तो इसको डिलीट करके मुझे पॉसिबिलिटी दे सकता है कि वो लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। उसको मेंटेन करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से एक्स वाज 2, तो इस पूरे रो में ट्रेवर्स करो और दो वैल्यूज ऐसे निकालो जो मैक्सिमम है। तो वो मैं किससे निकालूंगा कि पहले अगर एक्स लेस देन प्रायोरिटी क्यू का साइज लेस देन एक्स, तो फिर अगर लेट्स से अभी प्रायोरिटी क्यू में कुछ नहीं है तो इसको घुसा दो सम में, फिर इसको भी घुसा दो सम में, और अभी लेट्स से ग्रेटर देन एक्स हो गया क्योंकि दो वैल्यूज आ गया ना, अब ग्रेटर इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसको घुसाना है या नहीं घुसाना है वो डिपेंड करेगा, अगर ये वाला वैल्यू इन दोनों में से जो मिनिमम है उससे ज्यादा है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मेंटेन करके रखना है ना। अगर उससे ज्यादा है तो फिर जो मिनिमम वैल्यू है उसको पॉप करो प्रायोरिटी क्यू से, तो एस माइनस इक्वल्स टू पी, मतलब सम में से तुम हटा दो जो मिनिमम वाला है प्रायोरिटी क्यू टॉप, फिर प्रायोरिटी क्यू से उसको पॉप करो कि प्रायोरिटी पहले मेरा सम, पहले सम से तो ये मिनिमम को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं उसकी जगह पर इसको ऐड कर रहा हूँ और क्योंकि ऑलरेडी मेरा साइज एक्स था और एक्स से ज़्यादा अभी साइज आ गया है, लेकिन जैसे दो था, दो एलिमेंट ले लिया था, लेकिन दो से ज़्यादा मैं अभी लेना चाहता हूँ क्योंकि ये वाला ज़्यादा बेटर है, सम ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं मिनिमम वाले को हटा दूंगा, सम में से मैं मिनिमम को हटा दूंगा और उसके बाद इसको ऐड कर दूंगा। सम में से इसको हटाया, प्रायोरिटी क्यू से पॉप किया, फिर प्रायोरिटी क्यू में अभी का जो एलिमेंट है उसको पुश किया, या कब कर रहा हूँ जब ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन प्रायोरिटी क्यू दैट, जब मिनिमम से बड़ा है, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट डूइंग सम प्लस इक्वल्स टू वाला वैल्यू। ये करने के बाद अगर वो वाला वैल्यू ग्रेटर देन पी ऑफ आई क्या है, लाइक ये वाला वैल्यू, ये वाला एरे, अगर वो वाला वैल्यू जो अभी मेरा जो सम है वो अगर इससे ग्रेटर आ गया, तो ग्रेटर और इक्वल्स टू आ गया, मतलब ए अगर है मेरा वैल्यू वो अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 5 हो गया, इसका मतलब ए माइनस पी ऑफ 5 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, लाइक दिस वैल्यू, लाइक व्हाट ये जो वैल्यू है अगर इससे ग्रेटर आ गया तो फिर v5 माइनस ए जब मैं करूंगा ये तो ग्रेटर है ना, तो फिर ये लेस जीरो होगा या फिर लेस इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ग्रेटर है फिर ग्रेटर इक्वल्स टू होगा तो फिर लेस इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो फिर एक डिस्क पूरा रो खत्म हो जाएगा। अगर ये एक बार भी आ गया तो फिर रिटर्न 1, एल्स डू दी ऑपरेशन फॉर नेक्स्ट रो। अभी तक मैं मेंटेन करके रखा था, अब देखो ये एक अच्छा चीज है, अभी तक मैं यही मतलब सोचने का चीज़ है, प्रायोरिटी की हेल्प इसलिए कर रहा है कि इस रो के लिए मेरे पास एक साइज का कुछ है जिसमें मैंने स्टोर करके रखा है एक साइज का एक वैल्यूज, जिसमें टॉप मैक्सिमम वैल्यूज है। लेट्स से आफ्टर आई चेक फॉर दिस और लेट्स से इसके लिए नहीं हुआ, फिर इस रो के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। इस रो के लिए मैं क्या करूँगा, टॉप एक्स एलिमेंट्स इन दोनों में से
इन दोनों में से जो टॉप मेरा एक्स एलिमेंट है जो मैक्सिमम है उसको चेक करूंगा। फिर तो फिर अगर ये लेट्स से ग्रेटर देन है मेरे प्रोबेबिलिटी डॉट टॉप से, तो उससे पॉप करूंगा और इस वैल्यू को वहाँ पर ऐड कर दूंगा। ऐसे करके मैं इसके लिए चेक कर दूंगा, फिर मैं इसके लिए सबके लिए चेक करूंगा। जब मैं यहाँ पर आऊंगा मैं क्या बोलूंगा, अभी तक का जो मैक्सिमम सम है वो क्या इससे ज़्यादा है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। फिर मैं इस पूरी को ट्रेवर्स करूंगा, अभी तक का जो टॉप मैक्सिमम वाला है पूरा ग्रिड में, वो क्या इससे छोटा, इसको छोटा कट रहा है, अगर कट रहा है लाइक अगर इसको जीरो बना रहा है लेस देन इक्वल्स टू जीरो, अगर है तो है, नहीं है तो भागो भाई। दैट्स व्हाट आई डिड एंड एल्स आई रिटर्न जीरो एंड इस पैनली सर्च से आंसर आ जाएगा। या सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एक्सप्लेन्ड क्वाइट गुड। आई होप इट वाज हेल्पफुल।